हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज हम लोग पिकअप कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ बुक फ्लेमिंगो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर एंड इसकी जो लैंग्वेज यूज करी गई है इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. So we'll go about this chapter in the following stages. First, we'll talk about the author. Then we move to the theme, discussing the plot, and then we'll read the chapter and I'll give you explanation side by side. So the author of this chapter is Anish Jung. She was born in 1964 and she was born in Rourkela. Her parents were also writers, so eventually she also turned into a writer and she completed her education from Hyderabad and United States. Anish Chung, okay, let's read what's written in the book itself. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So you see, title के साथ में एक subtitle भी है, Stories of Stolen Childhood. इसकी क्या significance है? We'll discuss that. Also, the significance is related to the theme of the chapter. Theme of the chapter is how poverty has affected even the children. मतलब उनका चाइल्डहुड, उनकी इनोसेंस, जो टाइम उनको सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला टाइम होता है, इवन इन दैट टाइम हाउ पॉवर्टी हैज़ अफेक्टेड देयर लाइव्स. This is what the chapter is all about and the plot comes like author ने अपने encounters describe करे हैं with two children, एक सीमापुरी में और एक फिरोजाबाद में. So story by story the author has described her encounter with these children and what did she interpret, क्या उन्होंने observe करा, what all did she notice, ये सारी चीजें उन्होंने हमें अपनी story में बताई हैं. So we'll read the chapter paragraph by paragraph and I'll keep giving you explanation side by side. Let's first discuss about the subtitle, Stories of Stolen Childhood. क्या मतलब है इसका स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड? इससे हमें ये पता चल रहा है कि कैसे इवन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड these children were made to work or they had so much burden on them, या उनको इतना they were not as carefree or and they could not enjoy that much जितना हम लोग अपने चाइल्डहुड में कर सकते हैं. So basically it's telling ki how poverty, because of poverty, their childhood, which is the most important phase of our lives, has been stolen. Let's start reading. The story starts with this sentence, sometimes I find a rupee in the garbage. So this sentence has been used within the story itself, so we'll discuss it later. Okay, let's read. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. So, author ने start करा, why do you do this, with this question. So the author is basically questioning Sahib, who is a child living in the slums. She asks him, why are you scrounging for gold? Why are you scrounging in the garbage? Scrounging का मतलब होता है you seek to obtain something, मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो with a hope कि आपको हाँ कुछ मिलेगा. That is called scrounging. Okay.
So she says, I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. सो वो एवरी मॉर्निंग देखती है साहिब गार्बेज डंप्स में आसपास ही स्क्राउंजिंग फॉर थिंग्स, मतलब वो कुछ ढूंढ रहा होता है बहुत होप के साथ कि हाँ मुझे आज कुछ मिलेगा. ओके, सो साहिब के बारे में थोड़ा बताया गया है कि वो ढाका बांग्लादेश से आया है एंड व्हेन ही वाज स्मॉल हिज फैमिली मूव टू द सिटी एंड व्हाई बिकॉज देयर होम वाज स्वेप्ट अवे. तो उनके पास कोई रहने को जगह नहीं थी वहां पर, इसीलिए वो लोग सिटी में मूव हो गए इन सर्च फॉर मनी और इन सर्च फॉर समथिंग फॉर अ लिविंग दैट दे कुड अर्न समथिंग फॉर अ लिविंग. ओके, उसे even this line set amidst the green fields of Dhaka, his home was not even a distant memory. This line tells us कि वो बचपन में ही आ गया था. ही डज नॉट रिमेम्बर इट व्हेन डिड दे मूव. तो प्रॉब्ली उसकी मदर ने उसके फैमिली ने उन्हें बताया होगा कि व्हाट हैपेंड, वो ढाका से सिटी में क्यों मूव हुए. सो दैट इज ऑल अबाउट इट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. So, साहिब क्या जवाब देता है? ऑथर साहिब से पूछती है, Why do you do this? और साहिब जवाब देता है, I have nothing else to do. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना उन साहिब के पास और कुछ करने को ही नहीं था. ही वॉज सो यंग, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही हैड नथिंग टू डू, ही वॉज नॉट इवन बीइंग टॉट एनीथिंग. घर पे कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं. ही वॉज जस्ट ओपन, ही वॉज जस्ट एज फ्री एज अ बर्ड. उसके पास कुछ करने को नहीं था. सो ही रिप्लाइज, आई एम नथिंग एल्स टू डू. उसके पास और कुछ करने को नहीं है. दैट इज वाई वो क्या करता है, ही कीप्स फॉर लुकिंग थिंग्स इन द गार्बेज हीप्स. ऑथर उसे क्या सजेशन देती है, गो टू स्कूल. मतलब एकदम ऐसा सजेशन जो था, इट वॉज लाइक अ हॉलो एडवाइस. मतलब ऑथर ने बोल तो दिया बट उन्हें भी पता था और साहिब को भी पता था दैट इज नॉट पॉसिबल. दे डिड नॉट हैव दैट मनी टू सेंड टू फॉर साहिब टू गो टू स्कूल. साहिब की स्कूल फी पे करने के लिए उसकी फैमिली के पास प्रॉबेबली मनी नहीं था, या हो सकता है उनके वहाँ कल्चर ही नहीं होगा ऐसा स्लम्स में कि स्कूल भी जाना होता है. अब हम लोगों को देखिए, जब हम लोग स्टार्टिंग से ही from the day we are born, everything is planned, how our families or how our parents have planned everything for us. For Sahib, he says I have nothing to do, and जब author ने से कहा go to school, it was like a hollow advice because author also knew कि उसने बोल तो दिया but ये possible होना बहुत मुश्किल है. Let's move ahead. Okay. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. So, अब इस लाइन से क्या मतलब हमें समझ आता है, साहिब खुद ही बता रहा है कि मेरे जहां मैं रहता हूँ, where I come from, there is no school in the neighborhood. और ऑल्सो साहिब इज वेरी होपफुल कि अगर एक दिन स्कूल होगा भी तो वो जाएगा जरूर. Author, what does the author say then? If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. So यहाँ पे हमें पता चलता है साहिब wants to go to school. He did not deny it even once that he does not want to go to school. But author उसे ऐसी मजाक में बोलती हैं, अगर अच्छा मैं स्कूल बनाऊँ तो तुम आओगे क्या? And साहिब immediately says, yes, definitely, I'll come. Okay. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ऑथर ने तो मजाक में उसे बोल दिया कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे क्या. बट साहिब उसको वहां से भी एक होप दिखा. ही थॉट कि एक्चुअली में ऑथर ऐसा करेगा, अनीस जंग ऑथर ऐसा करेगी कि स्कूल बनाएगी एंड साहिब वुड अटेंड दैट स्कूल. तो वो थोड़े दिन बाद जब ऑथर से मिलता है तो वो उनसे फिर से पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? तो उसका जवाब क्या देते हैं, आइए पढ़े.
It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. So, this line is signifying something, but promises like mine abound in every corner of this bleak world. क्या होता है जब ऑथर ने उसको ऐसी फेक प्रॉमिस कर दिया कि हाँ अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे, बट साहिब फाउंडेड कि कुछ होप है, हाँ ऐसा हो सकता है, देर इज स्लाइट आयोटा ऑफ पॉसिबिलिटी कि हाँ स्कूल बनेगा और मैं अटेंड करूंगा, तो वो थोड़े दिन बाद उनसे मिलता है एंड दोबारा वही सवाल करता है इज द स्कूल रेडी। तो द ऑथर देन फील्स एम्बैरेस्ड, उसे लगता है मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था या मुझे ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था विच वॉज नॉट मेंट टू बी केप्ट। मतलब ऑथर ने कोई प्लान नहीं था ऑथर का स्कूल खोलने का, बट उन्होंने सिर्फ मजाक में ऐसा बोला था। एंड दिस लाइन, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. ब्लीक का क्या मतलब होता है? ब्लीक मीन्स नॉट सो होपफुल। सो नॉट सो होपफुल मतलब इन लोगों के लिए या फिर पुअर पीपल के लिए, कितने लोग, कितने पॉलिटिशियंस, कितने पीपल इन पावर, कितने बारी गवर्नमेंट प्रोमिसेस सो मेनी थिंग्स टू दीज पीपल, दे बिकम होपफुल एंड एंड रिजल्ट इज दैट कुछ भी उनके पास नो प्रोविजंस और नो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू देम, दे आर जस्ट मेड प्रोमिसेस एंड नथिंग इज केप्ट, कोई अपने प्रोमिसेस पूरा नहीं करता है। सो ब्लीक वर्ल्ड इज नॉट सो होपफुल वर्ल्ड, मतलब उसके पास प्रोमिसेस तो उसको करने वाले बहुत हैं, बट कोई पूरा करने वाला नहीं है। लेट्स रीड अहेड। After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. So अब ऑथर क्या है, वही उनके, क्योंकि उनकी नेबरहुड की कहानी है तो ऑथर इन सब पूरा गैंग है एक। सो ऑथर क्या कहता है, ओके, ऑथर कहता है बेयरफुट बॉयज। बेयरफुट बॉयज मतलब जो नंगे पैर चलते हैं, उन बॉयज का पूरा ग्रुप है, probably साहिब and his friends, all of them are doing the same thing, they are just scrounging from the garbage heaps. And one more thing which the author tells us here is that they all move barefoot, नंगे पैर चलते हैं सब लोग। यहाँ पर ऑथर क्या कहता है, साहिब ए आलम, he announces। ऑथर ने जब उससे नाम पूछा पूरा, he says साहिब ए आलम, which has a very beautiful meaning. It means लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट जैसा कि हमें डिस्क्राइब करा गया है साहिब के हर रोज के रूटीन के बारे में, अगर साहिब को अपने नाम का मतलब पता होता तो उसे विश्वास नहीं होता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इट्स सच अ हेवी नेम, मतलब he is the ruler, he has the power, he has everything what he wishes for. That is what is meant by lord of the universe, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साहिब इज जस्ट अ रैट पिकर, उसके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं है, इनफैक्ट चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं है। सो यू सी हाउ आयरॉनिकल इज इट। तो इसीलिए ऑथर कहता है अगर साहिब को अपने नाम का मतलब पता चलेगा तो वो खुद ही बिलीव नहीं कर पाएगा। Why aren't you wearing chappals? ऑथर फिर फाइनली पूछ ही लेती है, Why aren't you wearing chappals? My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life. Traveling across the country,
I've seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but tradition to stay barefoot is one explanation. See, दिस पैराग्राफ कहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है? अब ऑथर ने उसको इन बेयरफुट बॉयज को देखकर पूछा कि व्हाई डोंट यू वेयर चप्पल्स। तो अब उनके जवाब सुनिए। एक ने बोला मेरी मदर शेल्फ से नहीं उतार कर देती मुझे, इसीलिए मैं चप्पल ही नहीं पहनता। दूसरे ने बोला अगर उतार भी देंगी तो भी ही विल थ्रो देम ऑफ। एंड एक बच्चे ने जिसने बहुत ही मिसमैच शूज पहने हुए थे। आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कितने कितने ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं ये लोग कि एक चप्पल तक खरीदने के पैसे नहीं है। एंड मिसमैच शूज प्रोबेबली किसी कहीं से उन्हें ऐसी गार्बेज से मिले होंगे, दो अलग अलग जूते जो उस बच्चे ने पहन लिए, या फिर किसी बच्चे ने अपने पुराने जूते उसको दे दिए जो कि उसने बड़े शौक से पहन लिया और अभी भी पहन के घूम रहा है। और एक बच्चा कह रहा है कि आई हैव नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ शूज। कैन यू इवन इमेजिन दैट स्टेज ऑफ पॉवर्टी कि he has never in his life worn a pair of shoes. सो अब ऑथर हमें अपना बताती हैं अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन। सो ऑथर सेज दैट शी कीप्स ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री एंड शी हैज नोटिस दिस थिंग दैट शी हैज सीन चिल्ड्रन, मतलब उसने देखा है ऑल ओवर द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, कि बच्चे बिना चप्पल के या नंगे पैर ही उन्हें भागते हुए दिखते हैं, चाहे वो सिटी में हो चाहे वो विलेज में हो। सो ये स्लम्स के बच्चों का एक एक्सप्लेनेशन क्या है? They say it is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. So author कह रही है this is, she does not believe कि ये actual reason है for not wearing the chappals, but वो लोगों की explanation यही होती है कि हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इट इज लाइक इट इज अ ट्रेडिशन कि हम लोग बिना चप्पल के ही चलेंगे। सो दिस इज द ट्रेडिशन, दिस इज व्हाट दीज स्लम चिल्ड्रन टेल द ऑथर। ओके, आई वंडर at this if this is only an excuse to explain why a perpetual state of poverty. I remember a story of a man from Udupi once told me. Okay, let's complete the previous paragraph. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. So see, यहाँ पे author कह रही है कि she is not convinced. She thinks of this as an excuse. कि ये उनका सिर्फ एक excuse है. The main reason is that they cannot afford wearing footwear or chappal in this case. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। सो दिस पॉवर्टी इज एक्चुअली में अ परपेचुअल स्टेट। एक विशियस सर्कल सा बन जाता है जब कोई एक बच्चा स्लम में पैदा हो रहा है। वो अपने आसपास क्या देखता है? अपने आसपास सिर्फ गरीबी देखता है, सिर्फ इट्स एवरीथिंग इज सो डर्टी अराउंड हिम। छोटे छोटे घर होते हैं और खाने को कभी कभी 3 मील्स भी नहीं मिल पाते, एंड कपड़े पहनने को नहीं होते। कितना कितना ये सब वो देखते देखते दे ग्रो अप। तो क्या होता है, दे उनका माइंडसेट वैसा हो जाता है कि यस वी आर पुअर एंड यस वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ परपेचुअल स्टेट। वो भी बड़े होकर अपने आप को उसी कैटेगरी में मानेंगे, वो भी उसी तरीके से रहेंगे, वो भी वही चीज करेंगे जो उन्हें उन्होंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है। तो ये सारी चीजें देखते देखते जब कोई पैदा हो रहा है या बड़ा हो रहा है तो इट्स वेरी नेचुरल कि वो भी अपने बच्चों को वही स्टेट दिखाए, वैसे ही उसको रखे। तो इसीलिए इट इज नोन एज अ परपेचुअल स्टेट। लेट्स रीड अहेड। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. Okay, let's stop here.
सो अब क्या है, ऑथर हमें अपना एक पुरानी कोई स्टोरी बता रही है जो उन्हें याद है. शी सेज कि उन्हें एक ओडीपी इज अ प्लेस, वहाँ से किसी के साथ एनकाउंटर था उनका, वो शी इज डिस्क्राइबिंग कि एक आदमी था जो उन्हें ओडीपी में मिला था. एंड जब वो एक व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, he would go to school past an old temple where his father was a priest. उस यंग बॉय का स्कूल एकदम टेम्पल के पास में था एंड हिज फादर वाज अ प्रीस्ट. He would stop briefly and pray for a pair of shoes. So that young boy, priest का एक बेटा, he was praying to God for what? For a pair of, just a pair of shoes. मतलब उसकी बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी गॉड से कि आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज. दैट स्मॉलर रिक्वेस्ट. 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in an air of desolation. Desolation का क्या मतलब होता है? It is a state of complete emptiness या destruction. मतलब अब वो टाउन थोड़ा खत्म सा हो रहा है. I destruction या emptiness कह सकते हैं. या सुनसान सा हो गया है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं है. तो दैट इज व्हाट डेसोलेशन मीन्स. तो 30 years लेटर जब ऑथर दोबारा गई वहां पर, देन उन्होंने ये चेंज फील करा कि अच्छा ये टाउन तो बहुत खाली सा हो गया है या बहुत ही एम्प्टी सा हो गया है. इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. तो अब वो क्या कहती हैं, बैक क्या उसी टेम्पल में जाके देखती हैं, अच्छा वहां पर क्या क्या चेंजेस आए. एक तो वहां पे न्यू प्रीस्ट आ गया, वहां पे चेयर्स पड़ी हुई हैं. और मतलब शी इज डिस्क्राइबिंग अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड panting and threw his school bag on a folding bed. So ऑथर क्या डिस्क्राइब कर रही हैं, पहले कहाँ एक प्रीस्ट का बच्चा जूते के लिए प्रे करता था गॉड से, और यहाँ पर अब जो न्यू प्रीस्ट का बेटा है, he is also going to school, he is well dressed in his uniform, and he comes and throws his bag on the folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. So इस अपने इस एनकाउंटर से हमें ऑथर क्या बताना चाह रही है? पहले तो वो बता रही है कि पहले क्या होता था, जिस बच्चे ने शूज के लिए प्रे करा था, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड, एंड जब उसे शूज मिल गए तो उसने वापस से गॉड को बोला कि लेट मी नेवर लूज देम अगेन. मतलब आप उसकी वैल्यू समझ रहे हो उन शूज की, उस बच्चे के लिए क्या वैल्यू थी. दैट इज वॉट इज बीइंग टोल्ड हियर. जिसके पास जो चीज नहीं होती एंड उसको एकदम से मिल गई, उस चीज को वो बहुत वैल्यू करता है. दैट इज वाई ही अगेन वेंट टू द टेम्पल टू प्रे कि अब मैंने खोना नहीं चाहता. अब हमें ऑथर और क्या बता रही है इस एनकाउंटर से कि इवन द चिल्ड्रन ऑफ द प्रीस्ट्स नाउ वेयर शूज. मतलब पहले 30 years बैक उन्होंने जो देखा था कि प्रीस्ट के बच्चे के पास जूते ही नहीं है पहनने को, और अब उन्होंने देखा कि एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस तो आया है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, या कुछ थोड़ा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है. कि अब प्रीस्ट के बच्चा ही इज गोइंग टू स्कूल, अ प्रॉपर स्कूल, वेयरिंग हिज well dressed up in his uniform and wearing his shoes. But comparing to those who are still living in slums, उनको compare करके हमें author tells us कि they are still moving shoeless or they are still not able to afford shoes. रैट पिकर्स जिनके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, रैट पिकर्स इन माय नेबरहुड स्टिल रिमेन शूलेस. तो ये उन्होंने पूरा हमें अपना कुछ याद कर रही थी, वो कुछ बातें जो उनकी उस आदमी या उस बच्चे के साथ हुई थी ओडीपी में जो रहता था, वो उन्होंने हमें इस पैराग्राफ से बताया है. My acquaintance with the barefoot rat pickers leads me to Simapuri.
a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. So जैसा कि हमें ऊपर पता चला था इनिशियल पैराग्राफ्स में कि साहिब कहाँ से आया है, ढाका बांग्लादेश से। तो यहाँ पर फिर से दोबारा हमें बताया जा रहा है कि इनका बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का और ये कहाँ रहते हैं। सो दीज रैग पिकर्स आर स्टेइंग इन सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी का मतलब क्या है? पेरिफेरी मतलब आउटस्कर्ट्स। तो ये सब लोग साहिब और उसके फ्रेंड्स जो रैग पिकर्स हैं, जो बेयरफुट पूरा अपना ग्रुप बनाकर चलते हैं, ऑल दीज पीपल आर लिविंग इन सीमापुरी। सीमापुरी इज अ स्लम एरिया। कहाँ पर? पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, सिटी से थोड़ा, सिटी के एकदम बाहर ही, ठीक है, ये होता है आउटस्कर्ट्स का मतलब। आउटस्कर्ट्स, ओके। पेरिफेरी का मतलब है आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. So squatters का क्या मतलब है? Squatters मतलब होता है जो लोग आकर illegally एक जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। That is what is meant by squatters, who don't have the legal rights to occupy a place, but illegally they just वो अपना कब्जा जमा लेते हैं टाइप्स। तो ये लोग काइंड ऑफ रेफ्यूजीज कह सकते हैं, बट मतलब दे वर माइग्रेंट्स। ये लोग सब ढाका से आए थे, तो इन्होंने अपना एक इलाका बना लिया सीमापुरी में। सीमापुरी अब एक स्लम एरिया है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. तो जब ये लोग शिफ्ट हुए थे 1971 में, तब सीमापुरी इतना भरा हुआ जगह नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ विल्डरनेस, मतलब कुछ कुछ जंगल था वहां पर, खाली खाली था। तब ये लोग मूव हुए थे, लेकिन अब जाकर अब ये पूरा भर चुका है। इट इज पॉपुलेटेड लाइक एनीथिंग। एंड इसका मतलब क्या है? ऑल दीज पीपल आर डूइंग नथिंग बट रैग पिकिंग। ये उनका काइंड ऑफ प्रोफेशन बन चुका है, उनका काम बन चुका है रैग पिकिंग करना। Okay. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on the voting lists and enable them to buy grain. This line I am highlighting अभी डिस्कस करते हैं हम इस लाइन को। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी इस पैराग्राफ में आपको याद क्या करना है। जस्ट रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे घरों में रहते थे। सी यहाँ पर दिखा है स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और running water। मतलब उनके मिट्टी के घर थे, उनके roofs of tin, टीन और तारपुलिन जो होता है, शीट्स होती हैं बड़ी बड़ी स्टील की, एल्यूमिनियम की। उन शीट से उनकी छत होती थी कि मतलब हवा का जोर से अगर स्टॉर्म आए तो वो उड़ भी सकता था। मतलब वो ऐसे मिट्टी के घरों में रहते थे। और सीवेज की बहुत प्रॉब्लम है, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है वहां पर, बहुत स्मेल रहती है इसी कारण पूरा टाइम। मतलब ऑथर ने पूरा डिस्क्राइब करा है सीमापुरी में जहाँ ये लोग रहते हैं, ये स्लम एरिया में कैसे, कितने गंदे हालातों में रहते हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। पानी तक की कमी है वहां पे। सो यू सी, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। मतलब आप पॉपुलेशन देखें और ये लोग कर क्या रहे हैं फॉर ए लिविंग, व्हाट आर दे डूइंग? रैग पिकिंग, सिर्फ कूड़ेदान में से सामान उठा रहे हैं, कुछ कुछ सामान उठा रहे हैं।
Food is more important for survival than an identity. Okay, now this line. They have lived here for more than 30 years without an identity. आप समझ रहे हैं क्योंकि देवर स्क्वाटर्स, ये लोग किसी और देश से हमारे देश आए और इन्होंने यहाँ पर अपना इलाका जमा लिया. एक तो इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड्स ही नहीं है. दे डोंट हैव एनी इंडियन आइडेंटिटी नंबर या कुछ भी, पैन कार्ड कुछ भी नहीं है. बट व्हाट डू दे हैव? They don't have any identity cards, however they have ration cards. So यहाँ पर बहुत ही सटली, मतलब बहुत धीरे से ऑथर हमें क्या बताना चाह रही हैं कि इन लोगों के पास, जिनके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, दे हैव राशन कार्ड्स. एंड राशन कार्ड से हम सबको पता है क्या होता है. इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रूफ टू ऑब्टेन द वोटर्स आईडी. तो आप समझ रहे हैं पूरा सिस्टम गवर्नमेंट का या जो भी पॉलिटिशियंस का, कि वो लोग इनको, दे कुड नॉट प्रोवाइड देम विद एमिनिटीज लाइक एटलीस्ट अ हाउस टू लिव इन, प्रॉपर बाथरूम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सब एमिनिटीज उनको नहीं मिली. बट व्हाट डिड दे गेट? दे वर अलॉटेड राशन कार्ड्स. राशन कार्ड से ठीक है, इसके प्लस पॉइंट क्या है? सबने बनवाए भी क्यों? क्योंकि उनको इससे ग्रेन सस्ती मिलती हैं, खाने को मिल जाता है, मील्स सस्ते मिलते हैं. और साथ के साथ आप पॉलिटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज देखिए. ये 10,000 की संख्या के पास वोटिंग राइट्स आ गए. अब ये 10,000 की संख्या को उनको इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाएगा कि हमने आप लोगों को राशन कार्ड दिलवाए या हमने आप लोगों को चीप फूड दिलवाया, एंड इन रिटर्न वी वुड एक्सपेक्ट अ वोट. दिस कुड बी देयर स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये लोग जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स तक नहीं थे, दे हैड राशन कार्ड्स. तो दोनों का फायदा हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई कि रैग पिकर्स को हो गया कि हमें सस्ते में खाना मिलेगा, जो ऑथराइज सेंटर्स होते हैं वहां से, और पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट को एडवांटेज हुआ कि वील गेट देयर वोट्स. तो बात वहीं खत्म. Food is more important for survival than identity. See how simply everyone has just accepted it. उन्होंने कोई revolt नहीं किया. Why? Because they say food is more important. हमारे लिए जीने के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है, which is also true. यही तो बात है. मतलब उनके पास, they also accepted it. चलो ठीक है, हमें खाना मिल रहा है, we are happy. That is how it is working here. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. अब रैग पिकर्स भी यही कह रहे हैं, जब तक हमें खाना मिल रहा है, जब तक हमारा पेट भर रहा है, जब तक हम खाना खाकर सो पाते हैं, हम यहीं रहेंगे. दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, दे हैव मेड देमसेल्व्स कंफर्टेबल. उन्होंने बेसिकली धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. बिकॉज ढाका जहाँ से वो आए हैं वहां पर द हाउसेज वर स्वेप्ट अवे कुछ स्टॉर्म में, या वट एवर माइट बी द रीजन विच इज नॉट मेंशन इन द चैप्टर. तो जो मर्जी रीजन हो, वहां पर उन्हें ऐसे खाने पीने को भी नहीं मिल रहा था. वो वहां पर इतनी बुरी कंडीशन थी. यहाँ पे उन्हें लगता है सीमापुरी में रहकर दे आर स्टिल बेटर ऑफ, कि एटलीस्ट दे कैन हैव देयर मील्स, खाकर सो तो पाते हैं ढंग से. सो say a group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. यहाँ पर ऑथर ने हमें वही बताया है कि उनका लैंड इज वेरी ब्यूटिफुल, रिवर्स एंड देर आर ग्रीन फील्ड्स एंड एवरीथिंग, बट क्योंकि उन लोगों के लिए वहां पर कुछ खाने को ही नहीं था, उनके पास वहां रुकने का कोई रीजन ही नहीं था. दैट इज वाई दे मूव्ड हियर. दे आर लिविंग इन दिस स्लम एरिया विच इज वेरी डर्टी, एवरीथिंग इज डर्टी अराउंड, स्मेल है बहुत ज्यादा, मिट्टी के घर हैं, ये सब चीजें हैं. फिर भी दे आर स्टेइंग. व्हाई? बिकॉज यहाँ उन्हें राशन कार्ड से खाने को मिल जाता है. Wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes. So you see, ऐसे nomads की तरह इनका ज्यादा फैला हुआ सामान नहीं होता. एक ही कमरे में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने मर्जी लोग रुक सकते हैं. थोड़े इनका बहुत लिमिटेड सामान होता है, बिकॉज अगेन दे आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड बाइंग सो मेनी थिंग्स. तो जहां इन्हें खाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे जस्ट मूव देयर स्टफ
एंड दे जस्ट सेटअप देयर स्मॉल झुग्गी जिसे कहते हैं, या स्मॉल रूम अपना सेटअप कर लेते हैं, और अपना चूल्हा वगैरह सब इनके पास हैंडी होता है. दे जस्ट हैव टू मूव, they don't take any time in moving from one place to another. Okay. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. See here, हमें पता चलता है कि रैग पिकिंग इज काइंड ऑफ अ प्रोफेशन देयर. मतलब वहां पर जितने लोग रहते हैं सब लोग यही काम करते हैं. इमेजिन, उनका काम है ये. इट इज देयर मीन ऑफ सर्वाइवल. कि वो मतलब इसी कूड़ेदान में से या कूड़े के ढेर में से दे आर जस्ट लुकिंग फॉर थिंग्स कि हाँ कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. This is a very important line. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. So, यहाँ पर हमें ऑथर क्या बताना चाह रही है कि सीमापुरी में जो लोग रहते हैं उनके लिए गार्बेज क्या है? गार्बेज इज गोल्ड. Let me just tell you, this line is important. Garbage to them is gold. So क्या है यहाँ पर अब सिचुएशन कि अब वो लोग, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, उनका रोज का काम यही है, तो वो लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं. अब वो ऐसे मतलब दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर सर्च ऑल्सो. कहाँ देखना है, कितनी देर देखना है, कितना डीप जाकर देखना है, मतलब ये सारी सर्च में अब वो एक्सपर्ट हो गए क्योंकि रोज वो यही करते हैं. बड़े लोग भी बच्चे भी सब लोग इसी काम में लगे हैं सीमापुरी में. एवरीवन इज जस्ट डूइंग रैग पिकिंग. एंड अब हमें ऑथर बताती है कि इन लोगों के लिए रैग पिकिंग इज देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल. सो फॉर एल्डर्स it is a mean of survival, and for children it means something more than that. उनके लिए क्या है? It's like a game or it's like something wrapped in wonder. हम ये आगे पढ़ेंगे. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. मतलब गोल्ड से उनका मतलब है उन्हीं की रोजी रोटी है, यहीं से वो कमाते हैं, ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है कि इसी गार्बेज में से उन्हें कुछ वैल्यूएबल मिल जाता है. हमारे लिए जो चीज़ यूजलेस हो मे बी उनके लिए बहुत यूजफुल हो, एंड दे मेक यूज ऑफ इट ऑल्सो. वो ऐसे नहीं करते नहीं ये तो किसी का पुराना है या ये फटा हुआ है या ये टूटा हुआ है यहाँ से. नो, दे even consider that टूटी हुई चीज एज गोल्ड. उनके लिए इट इज वेरी वैल्यूएबल. इट इज देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल. ठीक है. फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है, फॉर चिल्ड्रन इट इज इवन मोर. सो बड़े लोग तो वहीं से कमाकर पैसे वैसे या जो भी बेच कर सामान, या फिर वहां से उन्हें कभी कभी कूड़ेदान में ही सब पैसे मिल जाते हैं पड़े हुए, 1 रुपए 2 रुपए कुछ नोट, या फिर कोई कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज, आयरन का सामान वो बेच के पैसे कमाते हैं और इसी से वो अपने वो मिट्टी के घर बनाते हैं. तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ इट इज देयर डेली ब्रेड. ठीक है. उनका साधन ही यही है कमाने का. चाहे उनकी छत जो है उससे पानी गिरता हो लेकिन छत तो है ना. तो वो ये चीज दिमाग में रखकर दे हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट कि यस हम लोग यहाँ पर बेटर हैं दैन आर ब्यूटिफुल सिटी और ब्यूटिफुल प्लेस वेयर वी कम फ्रॉम. सो चिल्ड्रन के लिए क्या है? बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope for finding more. तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, साहिब क्या कह रहा है
आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी एंड इवन अ 10 रुपी, मतलब गलती से हम अगर किसी लोग कुछ लोगों से 1 रुपया या 10 रुपए का नोट डस्टबिन में गिर जाता है, एंड वहां उस कूड़ेदान के मैदान में साहिब जहाँ पर रैग पिकिंग करता है, अगर उसे वहां से एक कॉइन भी मिलता है ना, ही गेट्स सो एक्साइटेड, मतलब हिज आईज लाइटन अप, या उसे इतनी खुशी मिलती है कि वाओ आज उसे कुछ मिला। एंड जब एक दिन उसे कुछ मिलता है, सो ही इज लाइक कि मैं क्यों ना और ढूंढूं, हो सकता है और हो, सो ही इज वेरी होपफुल कि हाँ इस जगह से मुझे सामान मिल सकता है, देयर इज होप। सो इस 1 रुपी 2 रुपी या 10 रुपी नोट को साहिब कंसिडर्स इवन दिस एज गोल्ड, दिस इज गोल्ड टू हिम। कुछ भी वैल्यूएबल बेसिकली यहाँ पर इज कंसिडर्ड एज गोल्ड। It seems that for children, garbage has a different meaning and from what it means to their parents. For children, it is wrapped in wonder. For elders, it is a means of survival. जैसा कि मैंने यहाँ पे mention किया था, for elders, it is a means of survival. For children, it is something wrapped in wonder. या फिर वो इसे एक गेम की तरह खेलते हैं कि कुछ मिलेगा, and they are very hopeful कि हाँ आज कुछ मिलेगा, हम और सर्च करेंगे तो हमें और मिलेगा। सो दैट इज वाई इन सब लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया है रैग पिकिंग को। लेट्स रीड अहेड। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother them. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching is so intensely out of his reach. सो यहाँ पर हमें ऑथर अपना एक और अपनी डिस्क्रिप्शन दे रही है साहिब और उनकी मीटिंग के बारे में बता रही हैं कि अ विंटर मॉर्निंग शी सॉ साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट। सो नेबरहुड में उनकी एक क्लब था जहाँ पे टेनिस खेलने आते थे लोग, एंड वहाँ के फेंस के बाहर मतलब एक जाला लगा हुआ था जहाँ से आप सिर्फ देख सकते हैं। उस जाले के बाहर खड़े होकर उन्होंने देखा कि साहिब वो गेम देख रहा है बहुत बहुत इंटरेस्ट से। ही इज वॉचिंग इट विथ फुल कंसंट्रेशन। सो तब उन्होंने तब साहिब और उनकी बातों के बारे में यहाँ बताया गया कि साहिब ने बोला कि आई लाइक दिस गेम, कि साहिब को टेनिस देखना या खेलना पसंद था। तो साहिब बताता है कि जब कोई नहीं होता तो उनका वॉचमैन उन्हें अंदर उसे अंदर जाने देता है, उसे खेलने देता है थोड़ी देर, या वहां पे कुछ स्विंग्स हैं साहिब को एटलीस्ट वो स्विंग्स पे खेलने देता है। और ऑथर जब साहिब को देखती हैं तो वो देखती हैं कि साहिब ने एक पेयर ऑफ शूज पहने हुए हैं, तो वो एकदम शॉक हो जाती हैं देखकर कि अरे जूते कहाँ से आए। तो साहिब उनको बताता है कि एक सम रिच बॉय गिव देम टू हिम। क्यों? क्योंकि उसमें एक होल था, तो वो रिच बॉय ने तो शूज डिस्कार्ड कर दिए, साहिब ने वो जो जूते पहने हुए थे, बट साहिब के लिए वो फटे हुए जूते भी या शू विद अ होल भी बहुत वैल्यूएबल थे। कहाँ वो लड़का बिना चप्पल बिना जूतों के चलता था, टुडे ही इज हैविंग समथिंग टू वेयर। उसने कुछ पहना हुआ है तो उसे वो छोटा सा होल कुछ बॉदर नहीं करता, उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। ही लाइक्स द शूज, ही वेयर्स देम। ओके, बट ये जो लाइन है, but the game he is watching is so intently out of his reach. So tennis क्या है ना, tennis is a game of gentleman it's said. And tennis में racket, ball, training, your shoes, everything comes so expensive कि author just अपने mind में सोचते हैं कि all this is so out of reach। मतलब साहिब को वहां तक पहुंचना, टेनिस as a sport pursue करना is something like a dream। So it's like a very
discomfort for the author to even think of such things कि साहिब जिसको वो एक बच्चा जिसको कोई एक गेम इतनी पसंद है, he's watching it with so much interest, उसके लिए ये गेम is out of reach. Why? Because he does not have the money, or because he was born in slums, and you know उसका he has no education also. वो करना भी चाहे, कुछ पढ़ना भी चाहे, तो उसके लिए there is no school. So you see how everything is so interlinked. आइए आगे पढ़ें. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his, the canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. This last paragraph of this short story is very important. Why? Because यहाँ पर हमें ऑथर बता रही है कि one morning, this morning या कोई particular day की morning, साहिब is on his way to the milk booth. Now what has happened? साहिब ने एक जॉब स्टार्ट कर दी है. कहाँ पर? एक मिल्क बूथ पर. ठीक है. एंड साहिब को वो देखती हैं अपने जॉब पर जाते हुए, अपने काम, एक बच्चे को एक काम पे जाते हुए देखती हैं. वो टी स्टॉल में ही इज वर्किंग, एंड साहिब उन्हें क्या बताता है कि आई एम पेड 800 bucks एंड ऑल माई मील्स. इमेजिन, उसे कहाँ अपने घर में एक टाइम भी खाने को मुश्किल से मिलता था, और यहाँ पर उसे तीनों मील्स मिल रहे हैं. वहां वो रैग पिकिंग कर रहा था, एक एक दो दो के सिक्के ढूंढ रहा था, 10 रुपए के नोट ढूंढ रहा था. यहाँ उसे 800 रुपए मिल रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग डील फॉर हिम. उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है. एंड अब ऑथर क्या पूछती है उसे, डू यू लाइक द जॉब? वो पूछते हैं तुम्हें ये काम पसंद आ रहा है? बट साहिब इसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता. उसके लिए पसंद नापसंद मायने ही नहीं रखती. उसे तो अपना पेट भरना है, जिसके लिए उसने ये जॉब स्टार्ट करी है, या मे बी अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए उसने ये जॉब स्टार्ट करी है. तो उसे पसंद हो नापसंद हो, डज नॉट मैटर. His face, I see, has lost the carefree look. जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करते हैं, या जब आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं, यू आर नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ योर ओन. आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते. आपको सब कुछ उस एम्प्लॉयर की, जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको पगार दे रहा है, सिर्फ उसकी चलती है, क्योंकि ही इज द मास्टर. आप उसके अंडर काम कर रहे हो. सीधी सी बात. तो यहीं पे ये बताया गया, ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक. There's a very beautiful line here. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. So यहाँ पर जो स्टील कैनिस्टर की बात करी गई है, seems heavier, इसका मतलब है दो चीजें. एक तो यहाँ पे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करी जा रही है. सीम्स हेवियर मतलब वो कैनिस्टर में जैसे दूध होगा या कुछ भी होगा, तो वो हेवी है बिकॉज ऑफ द वेट. एंड अदरवाइज और हेवी किस चीज से है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि उसके शोल्डर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली. कहाँ? तो पहले वो रैग पिकिंग के लिए वो प्लास्टिक सा बैग कैरी करता था, जो बहुत ही हल्का था. एंड अब वो जाकर he is carrying this canister which is very heavy because of two reasons. One, because of the weight of the content inside, and second, because responsibilities. The bag was his, the canister belongs to the man who owns the tea shop. यहाँ भी हमें यही पता चलता है कि वो अब एम्प्लॉयर के अंडर आ गया है. He is no longer the master of his own. साहिब आलम, याद है आपको हमने डिस्कस करा था नाम का मतलब. तो यहाँ पर उसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड, या आप कह सकते हैं द ऑथर इज एंडिंग द स्टोरी सेइंग कि अब वो अपने खुद का मास्टर तो नहीं रहा. वो पहले जब मन करे अपनी रैग पिकिंग करे, जब मन करे ना करे,
यहाँ पर उसे काम करना है पूरा दिन, या जब तक उसका एम्प्लॉयर उसको बोलेगा, तभी जाकर उसको वो 800 रुपये एंड 3 मील्स वगैरह मिलेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस स्टोरी. फर्स्ट स्टोरी है ये हमारी. नेक्स्ट स्टोरी हम लोग करेंगे अभी.